Hello everyone, welcome to Abhipedia. Guys, today we are going to discuss everything about BCom honors at Delhi University. We have already made a similar video about economics honors. तो अगर वो आपको देखनी है तो the link is in the description. Do watch it. Since your application form for CUET is going on right now, उसमें आपको क्या subjects भरने हैं बहुत important है, and क्या subjects भरने हैं this is determined by आपको कौन सी डिग्री करनी है, and क्या आपको डिग्री करनी है you should have appropriate knowledge कि आपको BCom honors में क्या मिलेगा, eco honors में क्या मिलेगा, what are the prospects, which colleges in DU offer them and everything. So this series will hopefully help you out, and any doubt you have related to any course in DU or in any of the central universities, make sure to comment down below and we'll get to it as soon as possible. So let's go into BCom honors today. So firstly I will discuss the eligibility criteria कि आपको BCom honors में जाने के लिए in DU what subjects are required in CUET. So इधर हमें दो subject combinations देखने को मिलते हैं. First is you have to take any one language from list A plus maths or applied maths and any two subjects from list B. This is the first combination and a very unpopular one जिससे लोग generally BCom honors में admission लेते हैं. The most popular combination through which entry is taken into BCom honors is the second one जहाँ पे आपको कोई भी language लेनी है plus accountancy और bookkeeping and any two subjects from list B. मोस्टली लोग इसके थ्रू ही लेते हैं. सो इफ़ यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET राइट नाउ, मेक श्योर टू fill these subject combinations if you want to gain entry into BCom honors at Delhi University. Moving on, we'll discuss some of the top colleges that offer this course. So I think everyone would know this. The top colleges in DU offering this course are SRCC, Hindu Hansraj, Ramjas, KMC, SGTB Khalsa, LSR, and mostly all colleges of DU offer this course. Just like Eco Honors, this is a very flagship and a very popular course that DU has to offer. तो मोस्टली सारे कॉलेजेस इस कोर्स को ऑफर करते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रेफरेंस शीट फॉर यू फॉर BCom honors. इफ़ यू नीड दैट डू कमेंट डाउन बिलो एंड इन ड्यू टाइम विल मेक वीडियोस अबाउट दैट एज वेल. बट ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं फॉर BCom honors. नाउ विल मूव ऑन. So this is a very popular question which is generally asked, and मैंने ये इको ऑनर्स वाली वीडियो में भी एड्रेस करा था कि आपको क्या लेना चाहिए, BCom ऑनर्स या इको ऑनर्स. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन वन थिंग, विच इज़ योर गोल. लाइक आई सेड इन दैट वीडियो, अगर आपका गोल प्लेसमेंट्स लेना है इनटू अ टॉप कंसल्टिंग और फाइनेंस एजेंसी फ्रॉम अ टॉप DU कॉलेज, देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर BCom ऑनर्स, क्योंकि प्लेसमेंट्स में इको ऑनर्स और BCom ऑनर्स में कोई फ़र्क नहीं है. बोथ द कोर्सेज आर ऑफर्ड द सेम प्रॉस्पेक्ट्स. एक ब्रांच में या एक कैटेगरी में मैं कहूँ, ऑडिट में BCom ऑनर्स ही अलाउड होते हैं अप्लाई करने के लिए. सो इफ़ एनीथिंग BCom ऑनर्स आर ऑफर्ड सॉर्ट ऑफ मोर प्लेसमेंट्स. बाकी एज सच कोई फ़र्क नहीं है कि इको ऑनर्स या BCom ऑनर्स को प्रेफर करा जाएगा. बोथ आर गिवन द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, एंड सिंस इको ऑनर्स इज़ वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू BCom ऑनर्स, तो आपको BCom ऑनर्स के लिए जाना चाहिए. इफ़ यू सॉर्ट ऑफ डोंट हैव एनी प्रीवियस इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेटली अगर आपका गोल प्लेसमेंट्स लेना है, सो यू शुड गो फॉर BCom ऑनर्स. However, guys, I should tell you this. I am also doing economics honors at Hansraj right now, and I have closely observed the degree of BCom honors as well. मैंने बहुत सारे electives भी लिए हैं उस डिपार्टमेंट के. तो मैं एक चीज़ आपको इसमें मेंशन करना चाहता हूँ. If you want a very analytical degree and a data oriented degree जिसमें आपको मॉडलिंग सिखाई जाएगी, डेटा मॉडलिंग, स्टेटिस्टिक्स होगा, तो आई डोंट रिकमेंड BCom ऑनर्स. क्योंकि अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो BCom ऑनर्स में स्टेटिस्टिक्स के लिए आपको दो सब्जेक्ट्स आपके आएंगे मोस्टली, विच आर योर बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स. तो ये दो सब्जेक्ट्स BCom ऑनर्स में आएंगे इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज इट्स अ वेरी अप एंड कमिंग फील्ड. तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आई शुड टेल यू राइट नाउ कि BCom ऑनर्स में सिर्फ वैसे दो ही सब्जेक्ट होंगे, विच आर योर बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड योर डेटा एनालिटिक्स. ये दो सब्जेक्ट्स आपको ऑफर होंगे इन लेटर सेमेस्टर्स ऑफ योर कोर्स, एंड इन दो में ही फेयरली स्टेटिस्टिकल और वैसी डेटा एनालिटिक्स वाली इन्वॉल्वमेंट होगी. सो सिंस इट्स एन अप एंड कमिंग फील्ड एंड मेनी पीपल वांट टू डू दैट, तो आई वुडंट रेकमेंड BCom ऑनर्स, क्योंकि ये सिर्फ दो सब्जेक्ट्स हैं. वेयर एज अगर हम इको ऑनर्स की बात करें तो इको ऑनर्स में बहुत सारे ऐसे आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे जहाँ पे स्टेटिस्टिक्स है, एंड ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मैथमेटिक्स. तो अगर आपको उस डायरेक्शन में आपका बेंट ऑफ माइंड अभी है तो यू शुड गो फॉर इको ऑनर्स, एंड यू शुड कंसिडर द लेवल ऑफ कोर्सेज एंड द नंबर ऑफ कोर्सेज एंड द टाइप ऑफ कोर्सेज जो आपको विद इन द BCom ऑनर्स प्रोग्राम या फिर इको ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर होंगे अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो. सो लेट्स डिस्कस सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस कोर्स. पहली बात तो ये इनहेरेंटली एक 3 ईयर प्रोग्राम है. BCom ऑनर्स की डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगी. अगर आप एक साल और
ऑप्ट करो करना है तो यू विल गेट अ बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस? इसका एक बेनिफिट तो है कि आपको मास्टर्स नहीं करनी पड़ेगी. यू कैन स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू पीएचडी डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटीज यू कैन डू इट फ्रॉम. वो एक लिस्ट है. तो अगर आपने ये 4 ईयर प्रोग्राम कर लिया बीकॉम ऑनर्स का तो यू विल गेट अ बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री, जहाँ पे आपको फिर मास्टर्स नहीं करनी पड़ेगी. यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू योर पीएचडी. Coming to the type of subjects you'll have in this course, they mostly range from your business studies like subjects, law के subjects होंगे and core accounting के subjects आपके पास होंगे ही. You'll get one course in this जो कि है business mathematics, जिसके अंदर थोड़ी आपकी maths की involvement होगी. Apart from that, as such कोई heavy mathematical involvement नहीं है. Finance, law, accounting एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके बिजनेस स्टडीज़ वाले पार्ट से मोस्टली यहाँ पे आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे. सम गुड कोर्सेज विद इन दिस प्रोग्राम आर डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, जो आपके स्टेटिस्टिक्स की तरफ ओरिएंटेड होंगे, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आपको इसमें आएगा. सो दीज आर सम स्मॉल फीचर्स ऑफ दिस कोर्स. एंड जो भी आपके माइंड में स्पेसिफिक डाउट है कि फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कॉलेज में प्लेसमेंट कैसी है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड विल गेट टू इट एज सून एज पॉसिबल, है ना. तो बिकॉज वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन वन वीडियो. जो भी आपका स्पेसिफिक डाउट है, सिंस यू आर सिलेक्टिंग योर सब्जेक्ट्स राइट नाउ फॉर द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज यू वांट टू गेट इनटू, तो आप कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिए आपको जो भी स्पेसिफिक डाउट है, एंड विल गेट टू इट एज सून एज पॉसिबल. नाउ गाइज, डिस्कसिंग द प्रॉस्पेक्ट्स आफ्टर दिस कोर्स. पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया प्रॉस्पेक्ट. योर कैंपस प्लेसमेंट्स आप कर सकते हैं इस कोर्स के बाद. सो द टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट कम टू टॉप ड्यू कॉलेजेस लाइक SRCC, हंसराज हिंदू में जो टॉप कंपनीज आती हैं, दे आर मोस्टली अराउंड फाइनेंस, कंसल्टिंग और योर अकाउंटिंग टाइप कंपनीज. बिग 4 वाली कंपनीज हैं. फाइनेंस की कंपनीज होगी लाइक डी शॉ, और योर कंसल्टिंग कंपनीज लाइक Bain, BCG, and McKinsey only comes to top of the top colleges like SRCC, Stephens, SSCBS. तो ऐसी कंपनीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी. And you can also obviously go for campus placements after this course. One of the popular options after this course that people have sort of opted are your professional exams. तो professional exams कैसे इसमें देखने को मिल रहे हैं? They are mostly around the lines of CA दे रहे हैं लोग, CFA देखने को मिल रहा है. Then we are having the actuarial exams which many people are giving right now. क्योंकि क्या है कि इन एग्ज़ाम्स का और बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस इज़ वेरी कोइंसाइडिंग, so people opt to give these exams because it provides them an additional edge in their job seeking process. तो काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स देखने को मिल रहे हैं in BCom honors. Additionally, you can always go for your post graduation after this. Many people are even considering a masters in economics after BCom honors now, since it offers good prospects after your undergraduate degree. Apart from that, you can obviously go into research and teaching after your masters. That depends on what type of competitive exams you clear and what types of universities you want to get into for research and teaching. This was it for this video guys. Again, अगर आपको कोई भी specific doubt है about BCom honors or any other course or about CUET, about DU admissions, do comment down below and we'll get to it as soon as possible. Thank you for watching this video. Fill your subjects very carefully. Application deadline 22nd March है. Best of luck, and in case of any doubt, make sure you reach to me. Thank you guys.